Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I am Shoaib Ahmed from IDM Pakistan. Welcome to this demo session. In this demo session, we are going to cover some important aspects of this training. The agenda of today's class is, first of all, I will give you an introduction of IDM Pakistan. And then what is digital marketing? We are directly going to dive in to what is digital marketing, why it is important, and what is the digital marketing process. Now, if I want to ask you that what is digital marketing or what is digital marketing process? So you might have these answers that digital marketing is simply posting on Facebook, digital marketing is simply doing SEO, but you know what? There is a process that every professional digital marketing expert knows and implements whenever he or she is actually executing digital marketing. And you will also be learning how to do digital marketing in all the overview of the modules, of the training modules that IDM Pakistan covers in the training session of the core training program. And lastly, you will also learn how to make money online using digital marketing. Now, directly diving into this, what is Institute of Digital Marketing Pakistan? Now, it is founded on 2016. IDM Pakistan is a premier digital marketing training institute for working professionals, entrepreneurs, and job seekers. Now, if you are here and you are a job seeker, you are in the right position. If you are here, if you are a business owner and an entrepreneur or willing to start a business, you are in the right place. And if you are here as a working professional, you are working in a company as a sales in a sales profession or in a marketing profession, or you are a brand manager or a marketing manager or anything that is associated with marketing or sales, then you are in the right time and in the right place. Now, IDM Pakistan is also the very first training company in Pakistan that started a full-fledged certification training program of digital marketing in Pakistan. Now, if you see other institutes who are offering digital marketing training or individuals who are offering trainings in online marketing, you will see that they might offer you social media marketing training, or they might offer you Google AdWords training. But you cannot get anywhere in Pakistan that we do not have a knowledge. If you have, please share it with us, that covers each and everything in detail. And the most important thing, the training is only conducted by the leading industry experts. Every module, there are total 16 modules in our training session, in our training course. If you have seen the curriculum, you know there are 16 modules. All modules are being taught by the respective expert of that topic. Now, a person who knows social media does not necessarily mean कि उसको SEO भी आती होगी. जिसको SEO आती हो, ये जरूरी नहीं है कि उसको AdWords भी आता हो. So you have to understand कि IDM पाकिस्तान में आपको जितनी भी ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा, he will be actually the expert in that field and that area, and actually working in an environment, is actually implementing digital marketing right now and has been doing so for at least 2 to 3 years minimum. Now, the goal of our training program is, well, there are two goals. The first goal is actually to make you an expert in marketing any business online by providing you in-depth knowledge from our industry leading experts. Now, if you are a business owner, if you are an entrepreneur, if you are willing to start a business, or if you are a job seeker, and if you are a working professional in marketing and sales department, you will actually be excel your career or your business by this objective. You will learn how to actually improve any business's revenue, sales. You will learn how to increase the brand awareness. You will learn how to increase the traffic on the website. You will learn how to increase the reputation of your brand. You will learn how to do social media marketing of any brand, which will actually enhance either your career or a business.
by completing this certification program. Now the second objective, which is in the green background, is actually our objective is to actually help you at the end of the training to make money online. Now if you are starting a business, or if you are a working professional and also want to start some as a side business, you want to start some online business, then we will help you. You can actually be able to start to make money online after completing the course as an e-commerce expert by starting online stores or as a freelancer in digital marketing. Now these are the modules of our training course. Now if you see, there are total 16 modules, and each and every module is taught by the respective industry leading expert of that topic. Now for example, a trainer who will be teaching you PPC, traffic and AdWords, will not teach you social media marketing because it is totally different. The person who will be teaching you display advertising might also teach you PPC and AdWords because they are both related. Now I hope you're getting the point here. And for example, if you look at the social media marketing, this one, our trainer Syed Sarim is also one of the most renowned figures in social media marketing. He actually is in the process of working with Facebook.com. He's actually in the process of working for them. So he is, the guru of social media marketing. Similarly, if you go to PPC AdWords, you will have a different instructor, and every instructor has a proven record of working either for a company for at least 3 to 4 years and working as a digital marketing expert in his or her domain area. Now if you see in this curriculum, there are 16 modules, and you will understand just by looking at these modules, and not even a single institute in Pakistan is actually covering all of these topics. And this is the total digital marketing. Now if you learn everything that I have shown you here in this screen, you will be able to call yourself as a digital marketing expert. You will be able to promote any business under the sun, and you will be able to start your own business and make money online. Now if you see the last two modules, the make money online module, here you will be taught 5 different practical methods to make money online. And this is blogging and AdSense, which you very well know if you are a little bit literate in digital marketing. Now all of these other 14 modules, which we will actually dive into right now, will teach you how to become the digital marketing expert that you want to be. Now what is digital marketing? Digital marketing क्या होती है? अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो आप लोगों के जहन में क्या आता है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? क्या ये खाली फेसबुक में पोस्टिंग को कहते हैं, या इसका और कोई डेफिनेशन आपके जहन में आती है? Well, let me tell you कि digital marketing क्या है कि it is marketing of products, services and businesses using digital technologies, mainly on the internet, but also including mobile phones and display advertising. Digital marketing is taking over traditional marketing. It is now not an option but a requirement for every business. Now if you look at any business in Pakistan, I'm talking about any business, any company, you will see there are at least either 2 to 3% handling digital marketing, or there is a whole department that is being basically situated to look over for the digital marketing of that company. Now it is just starting in Pakistan. It is not at its peak, it is not at its mature, it is in the growth mode right now. It is expanding. And now I'm going to share with you some industry figures in this demo session also, so that you can get an idea about how digital marketing is one of the fastest growing industries of Pakistan. Now why digital marketing is important? Now like if we just keep on doing traditional marketing, if we just keep on doing the offline marketing, why should we actually invest in digital marketing? Now a lot of people, a lot of students have different thoughts about this this question, but here is what I want to tell you, that okay, these are the stats from internetlivestats.com. The source is internetlivestats.com. Total Pakistan population is approximately 192 million.
and out of that, about 34.3 million are internet users. That should be internet users here. So if we say that every fifth person walking in Pakistan is actually an internet user, and most of the internet users are between the age of like 15 to 35, the youth. Now, internet users doubled between 2010 and 2015. I'm just going to give you a small stat of e-commerce. Now, e-commerce is basically a one segment of digital marketing. I'm going to give you a small stat of e-commerce. Now, if you just write on Google e-commerce growth in Pakistan, let's see what Google shows us. Okay, let's see. Tribune.com.pk. What it says. Okay, it says the Pakistan e-commerce industry to surpass several $100 million by 2020. Several $100 million. And the current figure of e-commerce industry is $30 million. Now in just 3 more years, it is going to be several $100 million, and according to one more source, it is going to hit $1 billion. $1 billion. Now, if you see the figure here that despite the trend of online shopping growing tremendously, it is still considered to be in its infancy. Like it's not even mature, it's just growing right now. Like total number, like 486 billion rupees was the amount transacted via branchless banking during only like 2 months, October to December 2015. Can you imagine that? The growth of the industry is mind-boggling. And if you just go to Rosie.pk, I'm sure that many people here would be aware of what is Rosie.pk. Rosie.pk is a job portal. If you just go over there and just search for digital marketing in the search bar, you will see hundreds of jobs for digital marketing in really good and renowned companies. And the best part is you do not need any degree of digital marketing to actually crack the interview. You just need proper skills, you just need proper knowledge, you just need proper experience, which we will actually give you in the training session. Now, if you look at our training session, we give our students the opportunity to actually pass not only our certificate. We will not only give you IDM Pakistan certificate, we will actually help you to pass the certification exam of Facebook. We will actually help you to pass 7 Google certification exams from Google AdWords and Google Analytics. So you will actually be able to get 9 certifications from IDM Pakistan. At the end of the session, we will provide you IDM Pakistan certification and also help you to get through Facebook and Google AdWords certifications, which will actually make you a Google and Facebook certified digital marketing expert. Now, we also give our students 22,200 worth of tools for free, because we know that in digital marketing you actually have to have tools, you actually have to have softwares to be able to enhance your learning. Now we have bought these tools, we have the licenses of these tools, and we will let you use these tools for free. Now these are 22,000 worth of tools which you will be using in the class, so that you have enhanced knowledge. When you go out of IDM Pakistan, you will know what are the industry leading softwares, what are the industry leading tools that will actually help you to accomplish any goal, even if you're a digital business owner, even if you are a job seeker, even if you're a working professional. These are the top of the line tools which we will give you for free. Now, what is the digital marketing process? Digital marketing process क्या होता है? I mean, अगर आप किसी से पूछें कि यार digital marketing का process क्या होता है, तो वो आपको यही बोलेगा कि आपने जो है वो ट्रैफिक दिलाना है वेबसाइट में, and that is it. और यूजुअली आपको एजेंसीज यही बोलती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, लेकिन देयर इज एक्चुअली अ प्रोसेस, 6-step process
that goes into digital marketing process. The first is visibility. Now if I'm going to ask you a question कि अगर आप एक शॉप खोलते हैं, एक रिटेल शॉप खोलते हैं, और आप ना कोई उसका बैनर अपनी दुकान के बाहर लगाते हैं, और ना कोई आप जो है कोई पैनाफ्लेक्स दुकान के बाहर लगाते हैं, और आपकी जो शॉप है वो मिसाल के तौर पे शहर के ऐसे कोने में है कि जहां पे ना कोई वॉक इन ट्रैफिक है, ना कोई आबादी है, तो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है। दुकान तो आपने खोल ली है लेकिन आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। इसी तरीके से ऑनलाइन भी क्या होता है कि जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू एक्चुअली make the first step is actually to build the website. The first step is actually to go out there and tell the world that I have started this business, or I have started this service or product. And that is you do that by starting your own website. Now our students actually are required to create a website in our training program. Like in the second module, you will be taught how to make your own website, and on that module we will help you to complete your website, so that everything you do from that point you will be doing on that website. And because we want every student to have practical knowledge rather than theoretical knowledge, which just by teaching you books is not necessary. Teaching you books is not enough. You have to learn, you have to practically do everything when you are doing digital marketing. Now first step is actually visibility. Once visibility is done, you actually bring targeted traffic. Now how you bring targeted traffic, we are going to cover that in the subsequent slides. There are countless ways of bringing targeted traffic. You can bring free traffic, you have paid methods, you have free methods, you have search engine optimization, you have Facebook ads, you have social media, a lot of different options. Now after you bring the targeted traffic, you actually engage. Now let me give you some examples of how you can actually bring targeted traffic, okay, so that you can get a little idea of how that actually is possible. Now let me go back here and show you something. All right, cool. So this is a small whiteboard. Okay, so you have created your website here, which we have discussed, right? Visibility, you have created your website. Now it is time to bring in the targeted traffic. Now this is your website. Your website can be of any name, of course your business name. Now you will be driving traffic to your website to different mediums. Like you will be doing search engine optimization. What is search engine optimization? I will tell you right now. You will be doing social media marketing. What is that? I will tell you right now. And you will be doing PPC ads. Now PPC ads are you will be learning on Google AdWords, you will be learning on Facebook ads and every other ads on the planet. You will be doing display advertising on different websites. So you will have a lot of different ways to bring in targeted traffic. But once the traffic have reached your website, your next objective is actually to engage your visitors. Now if you check our website IDM Pakistan, if you check IDM Pakistan, I'm going to show you something. All right, so engagement lani hai. How do we bring engagement? We bring engagement by, let's see, if a visitor comes here and here he actually or she actually sees their our curriculum. Now this is call to action. We are actually engaging the visitor into some action, okay, into some sort of action that they have to take to in order to get something. Now they can actually download the curriculum PDF, or they can start the demo. Now we are engaging with the visitors here. Now if you see here, we are also engaging that how this will help me. Are you an entrepreneur? Are you a working professional? Are you a job seeker? Are you starting a business? So if they belong to any other category, usually they are, and they will click the subsequent button and they will actually read all that. What we are doing is we are engaging with our students, with our visitors, sorry. So these are all ways to engage visitor. And here you will see the live chat option also.
which also helps in increasing the engagement of your website. Now there are a lot of different ways, like we will have batch images, we will have testimonials and everything. So actually we are engaging, we are building trust. The more time a visitor spends on your website, the more time the visitor spends on your website, the more chances for him or her to take your desired action, be it a sale, be it a lead, or whatever your business goal is. Now this is how you create engagement. Now conversion क्या होता है? Conversion ये होता है दोस्त कि conversion हर business के लिए अलग होता है. अब मिसाल के तौर पे एक विजिटर यहाँ पे आया है हमारी वेबसाइट के होम पेज में ना, कन्वर्जन वुड बी कि जब बंदा यहाँ क्लिक करेगा, मिसाल के तौर पे स्टार्ट पे डेमो में क्लिक करता है कोई, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये रीडायरेक्ट होगा, राइट? और लेट्स सपोज कि आई वांट टू अटेंड डेमो फिजिकली इन सेंटर, यहाँ पे वो क्लिक करता है एंड यहाँ पे अपनी वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो कंप्लीट करता है. अब यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो जो लीड है, इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इनटू अटेंडिंग आवर डेमो सेशन. नाउ ये हमारी लीड होगी. जब ये फिल कर लेगा बंदा फॉर्म, तो ये हमारे लिए कन्वर्जन होगा, ये हमारा कन्वर्जन होगा. कन्वर्जन क्या हुआ है? विजिटर टू लीड. लीड हमारी क्या, हमारा कन्वर्जन क्या है इस वक्त कि हमने उसको हमें उसको एक डेमो के लिए एनरोल कर लिया. दैट इज आवर कन्वर्जन. कन्वर्जन सेल भी हो सकता है, कन्वर्जन सर्वे फॉर्म फिल कराना भी हो सकता है. एनी गोल, कोई भी गोल आपका कन्वर्जन हो सकता है. अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे उनको होता है कि आप अटेंड करें डेमो सेशन, लेकिन यू विल हैव टू पे 500 रुपीज, तो हमारा जो कन्वर्जन होता है वो सेल का कन्वर्जन होता. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज कन्वर्जन्स. नाउ मेजरमेंट के लिए आपको देखना होता है कि यार मेरी वेबसाइट में जो लोग आ रहे हैं वो कौन कौन से पेजेस में जा रहे हैं, वो कितनी देर इस पेज में रुक रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कि कोई बंदा अगर इस वेबसाइट में आता है, हमारी वेबसाइट में आता है आईडीएम पाकिस्तान की, तो वो कितनी देर इस वेबसाइट में रुकेगा. अगर वो रुक रहा है मिसाल के तौर पे सिर्फ 3 सेकंड रुक के वो भाग रहा है, इसका मतलब है हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बहुत ज्यादा है. लेकिन मुझे ये कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि हमने अपनी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना है. गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करके हम सीखेंगे कि हमारे कौन से वेब पेजेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से पेजेस जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे. हम उनको फिर डायरेक्टली हिट करते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे. दिस जस्ट द टॉप ऑफ द आइसबर्ग. Now retention is how to actually retain the customers. Retain आप कैसे करते हैं customers को? By actually following up with them through email, by actually following up with them through retargeting, which you will actually learn in the training session as well. Now I'm going to dive in directly into the details of what you will actually learn in the training session. कि आप क्या सीखेंगे. हमारे जो ट्रेनिंग सेशन है, जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, आप कैसे उसमें सीख पाएंगे. द फर्स्ट मॉड्यूल इज डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि एवरी मॉड्यूल विल बी टॉट टू यू बाय डिफरेंट instructor. Every module will be taught to you by an expert of that topic. Now a person who will be teaching digital marketing overview module, this one may not be teaching you social media marketing, because he might be an expert into digital marketing, giving digital marketing overview, and might not be an expert in social media marketing. So I'm going to give you a bird's eye view of what you will actually learn in this whole training session. Now in this session, the first one is digital marketing overview. Your first class will be of digital marketing overview. Right now we have if you see that we have covered the digital marketing process in small detail, in literally very small detail. अभी यहाँ पे अब हम जब अपना टोटल जो कोर्स है, हमारा जो कोर कोर्स है, उसमें आप जो है सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि व्हाट इज विजिबिलिटी. अभी तो आपने देखा कि विजिबिलिटी क्या है, लेकिन उधर आप ये सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी. एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखाई जाएंगी और कंपेयर कराया जाएगा कि कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस है विजिबिलिटी की, कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है. सिमिलरली ट्रैफिक, ब्रिंगिंग ट्रैफिक के दो टाइप्स होते हैं. एक इनबाउंड ट्रैफिक होता है, आउटबाउंड ट्रैफिक होता है. आउटबाउंड के अंदर भी टाइप्स होती हैं, इनबाउंड के अंदर भी टाइप्स होती हैं. यू विल एक्चुअली लर्न एवरीथिंग इन डिटेल इन ब्रिंगिंग ट्रैफिक इन दिस डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू. एंड देन आपको बताया जाएगा कि कन्वर्जन्स क्या होती हैं, सेल्स फनल्स क्या होते हैं. सेल्स फनल्स आर द की टू ऑनलाइन मार्केटिंग. इफ यू अंडरस्टैंड सेल्स फनल, योर बिजनेस विल rise like anything. So converting traffic into leads, you will actually learn all about it in digital marketing overview. The basic bird's eye view I've already given to you.
नाउ रिटेंशन क्या होती है? रिटेंशन आपको बता चुका हूं मैं क्या होती है, एंड देन टाइप्स ऑफ रिटेंशन यू विल लर्न इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल. सिमिलरली मेजरिंग गूगल एनालिटिक्स, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि हमें मालूम करना होता है कौन से वेब पेजेस में हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से वेब पेजेस अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, यू विल एक्चुअली बी एबल टू सी दी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट. वहां पे जाके आप देख सकेंगे कि कौन सी फिगर्स हमें देखनी होती हैं, कौन से ग्राफ्स हमें देखने होते हैं, कौन से टैब्स में हमें गोल्स कैसे सेट करने होते हैं गूगल एनालिटिक्स से. सो इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड व्हिच यू विल बी डिस्कवरिंग इन द ट्रेनिंग सेशन. The second is वेबसाइट क्रिएशन एंड प्रोसेस. नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आप मुझे जवाब दीजिएगा. वो ये है कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या आपको आईटी का बंदा होना जरूरी है, या वेबसाइट बनाने के लिए क्या आपको कोडिंग आना जरूरी है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आना लाजमी है, वेबसाइट बनाने के लिए आपको आईटी का बंदा होना लाजमी है. लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिकॉज आपको इस ट्रेनिंग सेशन, इस सेकंड सेशन है हमारा, सेकंड सेशन होगा ट्रेनिंग का, जिसमें आप हमारी क्लास में ही आपसे वेबसाइट बनवाई जाएगी और आपसे जितना काम होगा पूरे एंड तक, 2 महीने तक जितना भी काम होगा वो सब का सब आपकी वेबसाइट में होगा, ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि यार ये मैं अपनी वेबसाइट में कैसे करूंगा, बाद में जाके आपको ये सवाल ना हो. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल training. It is not about theoretical, because it is changing and it requires practical knowledge. Now the best way to do it is to actually have you make a website and then do everything on that website. Now आपसे वेबसाइट बनवाई जाएगी और बहुत सारे लोगों को होता है कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे, हम तो कोडिंग नहीं आती. मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने नाम सुना होगा CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. ना बहुत सारे किस्म के CMS होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, जूमला है, ठीक है, और बहुत सारे किस्म के आपके CMS होते हैं. हम जो आपको सिखाएंगे बनाना, वो आपको सिखाएंगे वर्डप्रेस में. अगर आप अभी ये देखें, अगर आप मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप मिजान बैंक की वेबसाइट में जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि इनकी जो वेबसाइट है वो न सिर्फ ये कि बहुत अच्छी है, बल्कि ये देखें ये वेबसाइट जो है ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए भी, भले आपको कोडिंग आती है, भले आपको कोडिंग नहीं आती है, बिकॉज ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है. आपको सिर्फ ये बताना होगा सिस्टम को कि मुझे यहाँ पे ये में चाहिए, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लिखा होना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये लिंक्स चाहिए, यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेटर्स चाहिए, यहाँ पे मुझे ये बैनर चाहिए, यहाँ पे मुझे ये जो है ये आपका ये पेजेस चाहिए डिफरेंट, जहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आइकॉन्स चाहिए, यहाँ पे मुझे जो फूटर है ये मुझे फूटर चाहिए, यहाँ पे फूटर बार चाहिए. और ये जो है वेबसाइट ये बनी हुई है भाई वर्डप्रेस में. बिकॉज ये कैसे में पता चला, अगर हम सोर्स कोड में जाते हैं, सोर्स कोड में जाने के बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे WP-content लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हुई है. ना ये वेबसाइट वर्डप्रेस आपको आपकी अपनी वेबसाइट आप क्लास के दौरान बनाएंगे और हमारा इंस्ट्रक्टर जो है आपको सिखाएगा कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं. प्लस आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सारी की सारी जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो सब की सब आपको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाई जाएगी, ताकि आप फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको मिले कि ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड में काम कैसे करती हैं. नाउ गोइंग बैक टू द मॉड्यूल. ओके, सो इसमें आपको वेबसाइट से बनाना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आपको जो है बताया जाएगा कि एक डायरेक्ट रिस्पांस वेबसाइट में और एक कन्वेंशनल वेबसाइट में क्या फर्क होता है. देखिए, डायरेक्ट रिस्पांस वेबसाइट में आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूं. डायरेक्ट रिस्पांस वेबसाइट क्या होती है कि ऐसी वेबसाइट जो विजिटर से कोई डायरेक्ट रिस्पांस जो है वो ले रही हो. मिसाल के तौर पे कि आप अगर आप हमारी वेबसाइट में जाइए, बिकॉज वो बेहतरीन एग्जांपल है इस चीज की. अगर आप हमारी वेबसाइट में जाएं तो ये देखें, यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पांस हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमें जो है उनसे रिस्पांस है. या तो आप करिकुलम डाउनलोड करें या स्टार्ट करें डेमो से, तो हम उनसे डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई भी जो है वो बटन नहीं होता, कोई भी कॉल, इन बटन्स को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, CTA कहते हैं. अगर यहाँ पे कोई भी CTAs नहीं होते तो ये एक कन्वेंशनल वेबसाइट होती जो कोई भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रही होती.
कोई भी रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं करते। अगर मैं आपको इसकी नेक्स्ट लेवल चीज दिखाता हूं, अगर आप इस पेज में जाए हमारे, तो इसमें देखें हमारा हेडर भी गायब हो जाएगा। ये हेडर जो है ना, ये लाइन भी गायब हो जाएगी। अब देखें, ये देखें, ये हमारा हेडर भी गायब हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे फोन नंबर और ये लिखा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम एक्सट्रीमली डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो गए यहाँ पे, कि हमें जो विजिटर है उसको हमने बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन हमने नहीं रखी। उसके सामने सिर्फ एक बटन है, वो प्रेस करेगा और वहां पे जाके वो हमारे वेबिनार में इनरोल हो सकता है, डेमो में इनरोल हो सकता है, और वहां पे जाके वो सीख सकता है कि कैसे वो ट्रेनिंग सेशन को इनरोल हो। तो ये चीजें जो है ये है डायरेक्ट रिस्पॉन्स वेबसाइट। ये है डायरेक्ट रिस्पॉन्स वेबसाइट। और बाज क्या होती है, कन्वेंशनल वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कोई भी आपसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा होता, और ये आप सबसे बड़ी गलती होती है बिजनेसेस की, जिसकी वजह से जो है वो काफी लॉस का सामना करते हैं। ना आपको बताया जाएगा कि डोमेन एक्सटेंशंस क्या होती हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आप ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि आपसे पूरी वेबसाइट बनवाई जाएगी और सारा काम आपसे वेबसाइट में ही कराया जाएगा, जो आगे मॉड्यूल्स में आपको सिखाया जाएगा। Now, third is search engine optimization. Now, this is really big. This is really big. इसमें काफी टाइम हमारा लगेगा आपको सिखाने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू देता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है ना, अगर हम गूगल में जाएं और यहाँ पे मैं लिखूं मिसाल के तौर पे लेट्स सी बाय let's see iPhone 7 in Pakistan. Okay, ना अब मैंने क्या किया, मैंने ये कीवर्ड है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कीवर्ड। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड जब मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो मुझे गूगल ने रिजल्ट्स दिए हैं यहाँ पे। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा जो मैं आपको डेफिनेशन में उनकी बता दूंगा। ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रिजल्ट जो हैं, इनको हम कहते हैं SERP। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं SERP। SERP का मतलब होता है कि सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशंस। सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशंस इनका मतलब होता है। अब मैंने ये टाइप किया है iPhone 7 इन पाकिस्तान, बाय iPhone 7 इन पाकिस्तान। अब गूगल ने मुझे 28,80,000 रिजल्ट्स लाके दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 28,80,000 वेबसाइट जो हैं उसमें आप आईफोन को बाय कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। उसमें ये बात है कि किसी वेबसाइट में सिर्फ iPhone 7 का जिक्र होगा, तो किसी वेबसाइट में iPhone 7 इन पाकिस्तान का जिक्र होगा तो वो ब्लॉग्स हो जाएंगे। किसी वेबसाइट में सिर्फ iPhone 7 होगा, किसी वेबसाइट में सिर्फ बाय iPhone 7 होगा, किसी वेबसाइट में iPhone 7 इन पाकिस्तान होगा। जो सब कॉम्बिनेशंस एक्चुअली मिलके ये आपके जो है हमें इसने रिजल्ट्स ला के दिए। अगर आप ये देखें यहाँ पे टॉप वेबसाइट जो है, होम शॉपिंग है, टेलीमार्ट है, शॉप हाइव है, OLX है, दराज है, आई शॉपिंग है, आई शॉपिंग, ये सारी जो है अब ये ऊपर कैसे आई हुई है। होम शॉपिंग की अगर हम बात करें तो ये आई हुई है फर्स्ट पेज में, सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट पेज में सेकंड रिजल्ट इसका है। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना SEO काफी अच्छा किया हुआ है, और टेलीमार्ट ने अपना SEO सबसे अच्छा किया हुआ है, एंड दे आर रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। अगर हम सेकंड थर्ड में, बिकॉज द रीजन इज कि आपका जो ट्रैफिक है वो फर्स्ट पेज में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है, आप उसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि किन कीवर्ड्स में आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स में रैंक करना होता है। नाउ दिस इज बेसिकली SEO, जो मैंने अभी आपको बताया दो सेंटेंसेस में। इसको कहते हैं SEO की डेफिनेशन। वो ये है कि आपने देखना होता है कि आपके बिजनेस के लिए कौन से कीवर्ड्स प्रॉफिटेबल हैं, उन कीवर्ड्स की रिसर्च करनी होती है, एंड देन उन कीवर्ड्स की रिसर्च करने के बाद आपने उन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। नाउ जो SEO है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो इंतहाई डीप सब्जेक्ट है। आपका जो ट्रेनर होगा, ही विल एक्चुअली टीच यू एवरी स्मॉल एंड बिग डिटेल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ SEO जो है, अगर आप इधर देखें, SEO में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले SEO में दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज आपकी होती है ऑन पेज SEO, ठीक है,
ऑन पेज एसईओ होती है, एंड सेकंड आपकी होती है ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में क्या फर्क है? ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट में ही, मिसाल के तौर पे ये हमारी वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट में ही हमें अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना होता है। यानी कि जितनी भी आर्टिकल्स हमारे होंगे, मिसाल के तौर पे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, एग्जाम्पल है जो कि नहीं है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो हमें जो है एक खास कीवर्ड डेंसिटी को हमने अपनी पेज में जो है वो अपनी जो वेब पेज है उसमें खास कीवर्ड डेंसिटी तक हमें अपने उस कीवर्ड को रखना होता है। प्लस ये है कि हमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है, मीटा टैग्स और हेडलाइन टैग्स और हेडिंग और H1, H2, H3 टैग्स। इसके अलावा जो है हमें एंकर लिंकिंग करनी होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, इमेज के जो एंकर टेक्स्ट होता है वो हमें देखना होता है, वीडियो की एसईओ हमें करनी होती है। ये सारी चीजें हम अपनी वेबसाइट में कर रहे होते हैं। ये जो जितना भी ऑन पेज है ये सारी एसईओ हमारी वेबसाइट में हो रही होती है, लेकिन ये काफी नहीं होता। बहुत सारी चीजों में काफी होता है कि अगर आपका कीवर्ड बिल्कुल कम कंपटीशन का है तो आप खाली ऑन पेज करके भी शायद उसको रैंक कर सकें, लेकिन यूजुअली आपको ऑफ पेज का भी सहारा लेना होता है। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? तो ऑफ पेज एसईओ जो है एक सेकेंड, ऑफ ओके, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स ना, बैकलिंक्स जो हैं वो क्या होते हैं? बैकलिंक्स बेसिकली दूसरी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को लिंक कर रही होती हैं। कितनी दूसरी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट्स को लिंक कर रही हैं, नंबर वन, और कितनी अथॉरिटी की वो वेबसाइट्स हैं। इस ट्रेनिंग में आप न सिर्फ ये है कि आप ये सीखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया, बल्कि आपको बताया जाएगा कि कितनी टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल जो होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट बैकलिंक्स होते हैं, जो आर्टिकल्स में आप लिख के दूसरों की वेबसाइट में पोस्ट करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग होती है, ठीक है। वीडियो अगर आप YouTube में वीडियो डाल रहे हैं तो आप नीचे अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक डालते हैं। इसके अलावा प्रेस रिलीज लिंक्स होते हैं। इसके अलावा ब्लॉग नेटवर्क आप बनाते हैं। बहुत सारी जो है वो आपके बैकलिंक टाइप्स होते हैं। टोटल आपको जो बताए जाएंगे वो 15 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स बताए जाएंगे इस कोर्स में। 15 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप बैकलिंक्स बना सकते हैं, बल्कि आपको बताया भी जाएगा और आपको बोला भी जाएगा कि आप क्लास में ही उनमें जाके अपनी वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक बनाएं। बिकॉज लेट मी गो टू द कोर्स आउटलाइन हियर। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको ऑन पेज एसईओ के साथ ऑफ पेज एसईओ में आपको डीएपीए क्या होता है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या होती है, व्हाट आर बैकलिंक्स क्यों जो है वो बैकबोन है एसईओ के लिए, और कैसे आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, एसईओ के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कि हमें जो है वो मिसाल के तौर पे हमें एक लेयर्स बनानी होती हैं। लेयर में हम वेब 2.0 की करेंगे, लेयर 2 में हम ब्लॉग नेटवर्क करेंगे, मिसाल के तौर पे लेयर 3 में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ब्लास्ट करेंगे। सो यू हैव टू हैव डिफरेंट strategies for SEO। now SEO के लिए हम टूल्स भी आपको बताएंगे कैसे, कौन से आप टूल्स यूज करेंगे और डिफरेंस क्या है ब्लैक हैट SEO में, व्हाइट हैट SEO में, और कैसे आप गूगल की अपडेट से अपनी वेबसाइट को पिनलाइज होने से बचा सकते हैं, जो कि आप सारा आप ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज गूगल एडवर्ड्स। ना गूगल एडवर्ड्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं। नाउ इफ वी गो हियर, गूगल में मैं जाता हूं और मैं ये लिखता हूं यहाँ पे कोई कीवर्ड, लेट्स सपोज SEO ट्रेनिंग। ओके, ऑलराइट, इसमें कोई ऐड नहीं है। लेट्स सी सम अदर, लेट्स चेक इट आउट। social media agencies। all right, now if you just type in Daraz you will actually see के यहाँ पे these are all the organic listings। ये जितने भी ये वाली लिस्टिंग है ये ऑर्गेनिक है। ये जो एड जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द PPC
एड, दिस इज द एडवर्ड्स एड। ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग नहीं है, ये दराज वालों ने अपनी एड बना के पेज 1 में रैंक करवाया है अपना एड। जो भी आपका एड होता है, अगर कंपटीशन बिल्कुल जीरो है तो यू विल एक्चुअली बी ऑन द टॉप ऑफ द पे ऑफ गूगल just by running that. You will have no, if you have no competition. In this case there is actually no competition, which will actually learn in the whole training session कि कैसे आप competition gauge करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे करेंगे। So this is that, इसकी पहचान ये होती है कि you will actually see ad over here। कुछ ads यहाँ पे आएंगे और कुछ ads इस साइड में आते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कीवर्ड में, सो इसमें गूगल है उसने डायरेक्टली टॉप ऑफ द पेज जो है वो दराज को रैंक किया हुआ है। एंड दिस इज द एड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो मैं नहीं करूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं पेज खोलूंगा तो दराज का जो भी पेज होगा, होम पेज है या कोई लैंडिंग पेज है, वहां पे ये लिंक जाएगा और दराज के अकाउंट से जो भी बिड के पैसे होंगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वो कट जाएंगे। नाउ हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन से कीवर्ड में हाई कंपटीशन है? कंपटीशन का मतलब ये है कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो इस कीवर्ड में ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एड्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एड कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके लिए हमारे पास टूल होता है गूगल कीवर्ड टूल। अगर मैं गूगल कीवर्ड टूल में जाऊं तो okay, give it a second. Okay, so now अब यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंस्टेंस, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ buy flowers, और या बाय फ्लावर्स मैं रखता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह मैंने कुछ डाले पे, एंड देन आई गेट आइडियाज। गेट आइडियाज में क्लिक करने के बाद गिव इट अ सेकंड, यहाँ पे आपको बताया जाएगा, देखें कि बाय फ्लावर्स का जो कीवर्ड है, इसमें सजेस्टेड बिड हमारी कितनी आ रही है, 60 रुपीज, और इसमें जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो हैं 10 से लेकर 100, विच इज वेरी 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 लो, और कंपटीशन जो है वो काफी मीडियम है ऐसा कंपटीशन। सिमिलरली जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज्यादा आपको जो है वो बिड पे करनी होगी, उतना ज्यादा आपको पर क्लिक पे करना होगा। अब फ्लावर डिलीवरी है विच इज 100 से लेके 1000 तक इसमें जो है वो क्लिक्स आ रहे हैं पर मंथ के, और इसका कंपटीशन जो है वो मीडियम है, और इसमें आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 109 रुपीज पर क्लिक। इसका कंपटीशन लो है। अगर खाली फ्लावर्स की बात करते हैं तो इसका कंपटीशन लो है, इसमें आपको 64 रुपीज पे करना होगा। कंपटीशन लो क्यों है, मैं इसको आप एक चीज बताता हूँ कि फ्लावर्स का जो कीवर्ड है वो इंतहाई वेग कीवर्ड है, बहुत जनरल कीवर्ड है। इसमें फ्लावर्स का जो है वो कोई बंदा इंफॉर्मेशन के लिए भी आ रहा होगा, कोई बंदा जो है खाली फ्लावर्स उसको अच्छे लगते होंगे उसकी पिक्चर्स के लिए लेने के लिए आ रहा होगा, कोई उसमें एक छोटा सा सेगमेंट होगा जो फ्लावर्स को खरीदना चाहता होगा। लेकिन बाय फ्लावर्स जो है और फ्लावर डिलीवरी जो है, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको ऑर्डर्स ला के देंगे। बिकॉज अगर हम इसको एग्जैक्ट मैच करके या फ्रेज मैच करके हम इसके कीवर्ड्स रन करते हैं, सो यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू गेट ऑर्डर्स, बिकॉज ये कीवर्ड ऐसा है कि जो बंदा भी फ्लावर डिलीवरी गूगल में लिख रहा है, पाकिस्तान गूगल में लिख रहा है, तो वो चाहता है कि फ्लावर्स की डिलीवरी हो, ऑफकोर्स डिलीवरी की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो दैट इज वाई इनका कॉम्पिटिशन यूजुअली ज्यादा होता है। इससे देखिए सेंट फ्लावर से कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज इसमें जो है आप एडवर्टाइजर्स काफी जो है इसमें एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू गूगल एडवर्ड्स। ये सिर्फ एक छोटा सा गिस्ट मैंने आपको दिया है। यू विल एक्चुअली बी लर्निंग इन डेप्थ कि अंडरस्टैंडिंग गूगल एडवर्ड्स, you will actually learn how to structure your account, you will actually learn how to add campaigns, ad groups, keywords, ads, और किस टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती है। शॉपिंग एडवर्टाइजिंग होती है जो पाकिस्तान में फिलहाल नहीं है, शॉपिंग कैंपेन्स, सर्च कैंपेन आपकी सिखाई जाएंगी, डिस्प्ले कैंपेन आपको सिखाई जाएगी, वीडियो कैंपेन जो यूट्यूब में आपकी कैंपेन जो चलती हैं वो गूगल एडवर्ड्स से ही चलती हैं, वो आपको सिखाया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सर्च और डिस्प्ले कैंपेन आपको बताया जाएगा। एडवर्ड्स का एल्गोरिदम आपको सिखाया जाएगा कि क्वालिटी स्कोर का आपने कैसे मैनेज करना है, और ये जो मेन आपका रूल होता है कि जितना ज्यादा CTR होगा उतना कम आपका CPC होगा। सब आपको जो है
आपको सिखाया जाएगा ऑन द ट्रेनिंग सेशन. आई एम जस्ट गिविंग यू अ bird's eye view of what you will actually be learning in this module. Now हमें आगे चलना चाहिए because if I just cover all of this, I will not be able to cover the other modules और हमारा टाइम भी काफी ज्यादा लग रहा है. Now social media marketing and engagement and planning. Now this is the module where you will actually learn social media marketing. Social media marketing में आप क्या सीखेंगे? आपको सिखाया जाएगा फेसबुक मार्केटिंग के बारे में. ना फेसबुक, मैं इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं. गुड. ना फेसबुक मार्केटिंग में आपको जो है सिर्फ ये नहीं सिखाया जाएगा कैसे फेसबुक का पेज बनाना है या कैसे जो है वो पोस्टिंग आपने करनी है या शेड्यूलिंग कैसे करनी है या आपको ब्लाइंड पोस्ट कैसे डालने हैं. ये खाली आपको नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप फेसबुक में एड्स रन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ फेसबुक एड्स इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स. यहां जो आपने सीखा है सिर्फ गूगल एडवर्ड्स आपने सीखा है. सोशल मीडिया में आके आपको फेसबुक ऑफ मार्केटिंग के साथ साथ फेसबुक एड्स भी सिखाए जाएंगे कि किस टाइप की कैंपेन्स होती हैं, कौन से टाइप की कैंपेन्स होती हैं और कौन से टाइप की कैंपेन्स जो है वो किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूजफुल होते हैं और कितना आप कैसे एक कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी फेसबुक के बारे में. फेसबुक के अलावा आपको ट्विटर मार्केटिंग सिखाई जाएगी, लिंक्डइन मार्केटिंग सिखाई जाएगी और आपको एंड में वायरल मार्केटिंग सिखाई जाएगी. तो वायरल मार्केटिंग क्या होती है? वायरल मार्केटिंग इज सिंपली कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं या आपकी कोई ऐसी इमेज होती है जो YouTube में पोस्ट करने के बाद, जो Facebook में पोस्ट करने के बाद या आपकी अपनी वेबसाइट में पोस्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक वायरल होती है. उसमें आपको पेड एडवर्टाइजिंग अगर स्टार्ट में करते हैं तो करते हैं, लेकिन आपको हर वक्त नहीं करनी होती. इट एक्चुअली गोज, जिस तरह यहाँ पे होता है वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, तो वहां पे जो होता है डिजिटल मार्केटिंग में आपकी जो है वो वायरल होती है चीजें. वायरल कैसे होती हैं? इट एक्चुअली इज अ ब्लेंड ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स के अगर आपका जो है जो कंटेंट है वो ट्रेंडी है, यानी कि जो मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ट्रेंड आया हुआ है एंड आपने बिल्कुल उससे एग्जैक्ट मिलती हुई कोई वीडियो बनाई है या आपने कोई इमेज बनाई है या आपने कोई पीस ऑफ आर्टिकल लिखा है, वो वायरल होता है. अगर आपने कोई ऐसा शेयरेबल कोई कोट है, शेयरेबल कोई जोक है, शेयरेबल कोई वीडियो है, वो वायरल होती है. सो यू विल एक्चुअली लर्न कि कैसे आप वायरल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, कैसे आप लिंक्डइन मार्केटिंग करते हैं, कैसे आप ट्विटर मार्केटिंग करते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूं. एक वायरल वीडियो के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं. लेट्स गो टू यूट्यूब. I think it's Neon Cat or something. I'm not sure. Video, that is it. If you just see कि आप इस वीडियो को देखें, प्ले करते हैं इस वीडियो को. नाउ यू हैव सीन कि ये जो ये कैट है ये उछलती रहेगी पूरे 3.5 मिनट तक एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ व्यूज. 144 मिलियन लोगों ने इसको देखा है. 144 मिलियन लोगों ने देखा है और इसका जो है वो 10 आवर वर्जन भी यहाँ पे कही है एंड यू कैन सी दैट. आई मीन कैन यू इमेजिन कि ये ऐसी वायरल हुई है, ये जो नियॉन कैट जो है, जो ये सिर्फ यही कर रही है, उछलती रह रही है. जो इसकी जो पीछे राइम चल रही है, ये चल के उछलती रह रही है बस. दैट इज इट एंड पीपल आर एक्चुअली क्रेजी अबाउट इट. सो यू हैव टू सी कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है एंड देन उस ट्रेंड के मुताबिक क्या आपका जो कंटेंट है सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बल्कि क्या शेयरेबल है, एंड देन यू एक्चुअली go from that. All right, so going back to the social media, so you will actually learn everything. Practical exercises होंगी जिसमें आपको पेज बनाना होगा, आपको कंटेंट्स ऐड करने होंगे, कॉन्टैक्ट्स ऐड करने होंगे, फिर आपको पोस्टिंग करवाएंगे, आपको जो वॉल होगी उसमें पोस्टिंग होगी, so that you can actually learn first hand how to actually do all that stuff. Now there will be certain tools and applications जो आपको बताई जाएंगी, जो आप यूज करेंगे अपने पेज में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बताई जाएंगी एडवर्टाइजिंग की, ताकि जो है यूजुअली हर almost every business can make use of Facebook ads, and we will actually make you an expert in Facebook advertisements. And following it will be LinkedIn marketing, Twitter marketing, and then I have already told you about the viral marketing.
Now the mobile marketing and app module, which is the sixth module, it will actually be about how you can not only create the app, because we are not a software house, we will not actually teach you how to create the app, but we will help you, we will teach you how you can promote the app on iOS or the Google Play Store. So you will learn how to promote the app. You will learn how to run ads, how to promote your application, so that you can like reach 1,000 downloads and 10,000 downloads and 100,000 downloads, and start making your apps for your businesses. Now display advertising जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं. Now there is display ads होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. Sorry, there are basically banner ads, rich media ads, pop-up ads. Now banner ads, they're simply banner ads. If you see here, अगर आप YouTube में जाएं तो you will actually see ad आपको नजर आएगा right hand side में. अच्छा, ये जो ad है ये है rich media ad, because either it will be a video. Actually, this is not rich media ad. This is the video ad. This is the video ad. Now, if we search about here, let's say digital marketing. This is video ad. This is also a video ad. अभी यहाँ पे ad आ नहीं रहे हैं for some reason. Let's see again, neon. Okay. Let's click on this video. So here we go, any ad, waiting for the ad. Great. Now this is the ad. This is a simple banner ad. This is not rich media ad. This is a simple banner ad. Rich media ad is actually कि यहाँ पे कुछ आपको lights होंगी लगी हुई, यहाँ पे कुछ अंदर जो है ना वो GIF वीडियो GIF इमेज फॉर्मेट हो सकता है कि आपका मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है तो वो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा ब्लू एंड व्हाइट में जो है ना ब्लिंक हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस. इसके अलावा जो पॉपअप एड्स होते हैं, आप जाते हैं वेबसाइट्स में तो यू गेट पॉपअप आपको मिलता है. वो तो खैर पॉपअप होता है वेबसाइट का अपना, लेकिन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में यू कैन एक्चुअली क्रिएट पॉपअप एड्स फॉर डिफरेंट अदर वेबसाइट्स. Now you will also learn about all of these in-text ads, image ads, video ads, and in-page ads in the training module. Now this is amazing about the email marketing and automation. Now this is one of my favorite topics because this can change the outlook of your business. If you're a business owner, working professional, this can actually like enhance your either business or career growth enormously. Now you will not only learn about bulk email marketing, which you will of course learn about, but you will also learn about one of the most important things that businesses actually forget, that is opt-in marketing. Opt-in marketing is a process क्या होता है opt-in marketing का, मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ. Let's suppose के delete that. All right, cool. Opt-in marketing ये होती है कि you make a page on your website. All right, आपने पेज बनाया वेबसाइट में, यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है. अब क्या होगा, वो पेज कोई वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा होगा. मिसाल के तौर कोई वीडियो है या कोई इमेज है, आप बोलते हैं कि मैं आपको जो हूँ फ्री ई बुक दूंगा या फ्री कोई सेमिनार का टिकट दूंगा इफ यू साइन अप हियर फॉर फ्री. तो वो जो ट्रैफिक आप यहाँ पे ला रहे हैं इस पेज में, जब वो क्लिक करेगा इस बटन में तो एक फॉर्म खुलेगा. वो फॉर्म क्या होगा, उसमें आप उनका नेम, ईमेल, फोन नंबर मांगेंगे या खाली नेम और ईमेल मांगेंगे. अब क्या हुआ, उस बंदे ने जैसे ही आपको फॉर्म फिल करके दिया, यस मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब वो बंदा आपकी लिस्ट में आ गया है. ये जो लिस्ट है आपकी, ये आपके लिए गोल्ड माइन होती है, बिकॉज आपने जो है कोई बल्क ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप इंटरेस्टेड लोगों को, जाहिर सी बात है जिस बंदे ने यहाँ पे आपको अपना नेम और ईमेल दिया है वो लाजमी आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड था. अब क्या है कि वो आपकी लिस्ट में आ गया. अब पीछे हमारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप सीखेंगे इस कोर्स में, वो ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपने ईमेल्स को शेड्यूल कर लेते हैं. एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप अपने ईमेल को शेड्यूल कर लेते हैं. और क्या होता है कि हर हफ्ते जो है वो आप अपनी लिस्ट को ईमेल करते हैं ऑन ऑटोमेटेड बेसिस, और उनको जो है रिमाइंड कराते हैं परचेस करने के लिए या साइन अप होने के लिए या कोई और भी एक्शन आप बताते हैं वो करने के लिए. तो दिस इज एक्चुअली
आपकी ईमेल ऑटोमेशन होती है जिसको हम सॉलिसिटेड ईमेल मार्केटिंग कहते हैं या ऑप्ट-इन ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अनसॉलिसिटेड जो होती है वो होती है बल्क ईमेल मार्केटिंग। बल्क ईमेल मार्केटिंग में आपके पास बल्क क्या होती है कि आपको लिस्ट दे दी जाती है रैंडम 10,000 लोगों की या 1 लाख लोगों की या 5 लाख लोगों की। उसमें ये होता है कि आप जो है वो आप उनको ईमेल करते हैं और वो जो है ईमेल आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा सब कुछ कि कैसे कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद उसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी ताकि आपका जो ईमेल है वो इनबॉक्स में लैंड हो। बिकॉज बल्क ईमेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ईमेल जो है वो स्पैम में चले जाते हैं या जंक में चले जाते हैं। तो आपको ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि जिसके थ्रू अगर आप फॉलो करें तो आपका जो ईमेल है वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उसके इनबॉक्स में लैंड होने के। अगर इनबॉक्स में लैंड होगा तो ईमेल ओपन होगा, ईमेल ओपन होगा तो जाहिर सी बात है जो एक्शन आपने लिखा होगा वो एक्शन कस्टमर या तो लेगा या नहीं लेगा डिपेंडिंग ऑन द ईमेल कंटेंट्स। ऑलराइट, सो नाउ ओके, ईमेल मार्केटिंग में आपको ये बता रहा था एक चीज। ऑलराइट, मैं आपको दिखाता हूं हम लोग की ईमेल मार्केटिंग। नाउ समवन इज एक्चुअली, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई बंदा आया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है हमारी वेबसाइट है। कौन सा वाला पेज है हमारी वेबसाइट का? ये वाला पेज है जिसकी मैंने अभी आपको बताया है। सॉरी, ये वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बटन है। ये बटन जब कोई भी क्लिक करता है तो दे एक्चुअली साइंस अप फॉर दी डेमो सेशन जो आप अभी ले रहे हैं। डेमो सेशन के लिए साइन अप होते हैं। तो ये जो विजिटर है ये हमारी अब लिस्ट में आ गया। अब नाउ वी विल एक्चुअली बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन अबाउट आवर अपकमिंग ट्रेनिंग्स। जो हमारी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आप इसमें अचीव कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली डूइंग इट। और जब ये साइन अप होगा तो ये हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर में चला जाएगा, यानी कि ईमेल का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में। और वहां से जो उनको जो है वो वीकली बेसिस में या डेली बेसिस में ईमेल जो है वो सेंड आउट होते हैं। जो आप सीखेंगे पूरे कोर्स में ईमेल मार्केटिंग के कैसे आपने जो है वो प्रॉपर्ली करनी है। नाउ ईमेल के बाद जो है वो आपको बताया जाएगा लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन। लीड जनरेशन क्या होती है, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं हमारी अपनी वेबसाइट से। लीड क्या है कि यहां पे कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट में आया और यहाँ पे उसने आके ये देखा कि यार हम लोग डेमो दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेमो का लिखा हुआ है, तो उसने कहा मैं डेमो में इनरोल होता हूँ। तो उसने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है उसने जो है वो अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस डाला और यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब वो बंदा जो है वो विजिटर से हटके हमारे लिए लीड हो गया, ठीक है। वो विजिटर से हटके हमारे लिए वो बंदा जो है वो लीड हो गया। नाउ अब क्या हो गया, अब लीड का मतलब ये हो गया कि वो हम उसको जो है अब उसको कन्विंस करेंगे टुवर्ड्स सेल। समझ में बात को आप? अब लीड देखा, मैं आपको बताता हूं यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक विजिटर था जो हमारे इस पेज में आया। कौन से पेज में? इस सॉरी इस पेज में आया, राइट। अब जब वो इस बटन को क्लिक करेगा और फिर इनरोल होगा हमारे डेमो में, तो वो ओह माय गॉड, तो वो बंदा जो है वो ब्लैक बोर्ड क्लोज हो गया, व्हाइट बोर्ड। तो वो बंदा जो है वो विजिटर से लीड बन गया। और जब वो हमारा ट्रेनिंग कोर्स लेगा तो वो लीड से कस्टमर हो जाएगा। तो ये चीज आपको सिखाई जाएगी और ये चीज हर बिजनेस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको सब सिखाया जाएगा कि लैंडिंग पेज आपने कैसे बनाना है, और आपने जो इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंडिंग पेज की कि कन्वर्जन कैसे बढ़ाने हैं लैंडिंग पेज में, फंडामेंटल्स क्या है लैंडिंग पेज के, कन्वर्जन कैसे लानी है, ए बी टेस्टिंग कैसे करनी है। और आपको अपना लैंडिंग पेज बनवाया जाएगा क्लास के दौरान ही, ताकि आपको अंदाजा हो कि यार हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ लैंडिंग पेज। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट thing, e-commerce marketing. Now e-commerce marketing is basically आप अपनी सिंपल सी चीज है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दैट इज ई-कॉमर्स। नाउ पाकिस्तान में क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स का इतना जो है वो रुझान नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कॉमर्स कह सकते हैं इसको आप, लेकिन ये कि वी एक्चुअली कॉल इट ई-कॉमर्स एनी हाउ। सो ई कॉमर्स आपको सिखाया जाएगा कि कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की पाकिस्तान में,
एंड देन डिफरेंट ई कॉमर्स के CMS आपको सिखाए जाएंगे कि आपको शॉपिफाई दिखाया जाएगा, आपको जो है वू कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा, ओपन कार्ट के बारे में बताया जाएगा एंड डिफरेंट अदर ई कॉमर्स CMS ऑप्शंस के बारे में और शॉपिंग कार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कौन सी CMS में आप अपना स्टोर बना सकते हैं. एंड देन यू विल आल्सो बी taught about logistics and courier companies which will actually deliver your products to the customers and how you can actually set up your online store and similarly how you can find profitable products for your online store. Now again you will also be learning, you will also have to use Facebook advertisements and Google advertisements and search engine optimization, which you have already covered in the past, module number 2 and module number 6 and module number 4. Now here you will learn about online reputation management. Now what is online reputation management? I'm not going to give you a theory, I'm going to show you a real life example. Let's suppose कि आप जो है गूगल में जाते हैं, ऑलराइट, आप गूगल में जाते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं केमू. केमू जो है वो काफी एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है पाकिस्तान की, यू कैन चेक दैट, kemu.pk. ऑलराइट, यहाँ पे आप लिखते हैं केमू रिव्यूज. अब क्या हो रहा है कि अगर आप ये देखें, ये केमू के जो इधर रिव्यूज हैं वो काफी अच्छे नहीं है. ट्रस्टेड कंपनी, ये दफा नाइजीरिया की है बिकॉज ये लोग नाइजीरिया में भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.2 रेटिंग का. ग्लास डोर का रिजल्ट आ रहा है सेकंड में 3.2 रेटिंग का. इसके अलावा जो है रीसेलर रेटिंग्स का आ रहा है 1/10 का. तो ये सारी जो है अगर आप देखें ये इनकी जो है रेपुटेशन इंतहाई खराब हुई हुई है गूगल में. तो व्हाट एक्चुअली यू विल लर्न कि आपने गूगल के फर्स्ट पेज में ये सारे जो नेगेटिव रिव्यूज हैं इनको कैसे रिप्लेस करना है. हटा नहीं सकते मोस्ट ऑफ द केसेस, सम केसेस में आप हटा सकते हैं, लेकिन जिन केसेस में आप नहीं हटा सकते तो हाउ यू कैन एक्चुअली रिप्लेस दीज वेबसाइट्स. तो आपको बताया जाएगा कैसे डमी वेबसाइट्स बनानी है और कैसे डमी वेबसाइट्स को एसईओ करके आपने रैंक करना है ताकि ये जो वेबसाइट्स हैं वो नीचे गिर के पेज 2 और पेज 3 में आ जाए और आपकी जो डमी वेबसाइट्स हैं वो रैंक करके पेज 1 में आ जाए, ताकि कोई भी अगर कस्टमर आपका इधर आएगा तो वो बैड रिव्यूज देख के, जो यूजुअली फेक होते हैं, देख के वो जो है वो अपने डिसीजन को चेंज ना करे परचेस करने के. Now this is only on not only on Google, ये आपका होता है Facebook में भी होता है, Twitter में भी होता है, which you will learn कि आपको कैसे जो है ORM करना है सोशल मीडिया में भी, यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपने सोशल मीडिया में कैसे करनी है, आपने गूगल में कैसे करनी है, और आपने मॉनिटर कैसे करना है कि आइंदा कोई अगर आपके बिजनेस के बारे में कोई गलत बात बोले तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन कैसे आ जाए, वो आप गूगल अलर्ट के थ्रू सेट करते हैं, जो कि आप ट्रेनिंग सेशन में पूरा कंप्लीटली सीखेंगे. नाउ ग्रोथ हैकिंग एंड वायरल मार्केटिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा जो आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि कैसे इसको आपने ये अचीव करना है. Now blogging in AdSense के बारे में I don't think I need to provide any overview about it. You will be learning how to create a blog and also how to create AdSense account and then earn from that blog using that AdSense account. So it's pretty quite self-explanatory. Now in this 14th module आपको बताया जाएगा कि आप कैसे जो है अपने ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं. Now introduction to make money online. A lot of people think that making money online is a scam, which is like really not true, because there are people, in fact I am also alhamdulillah making a lot quite significant amount of money online. A lot of people are making money online, and we will actually give you the successful case studies of people who are actually making money online. You will be given 5 methods, 5 methods आपको बताए जाएंगे कि जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसे मेथड्स होंगे कि जो प्रूवन 100% वर्किंग है, कि आप अगर अपना इसमें अपना स्टार्ट करेंगे काम करना तो यू विल एक्चुअली मेक मनी इंशाल्लाह. नाउ दैट अगेन डिपेंड्स कि आप कितनी डेडिकेशन आपके अंदर है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सक्सेस विल वेरी, बट यू विल लर्न कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी पोटेंशियल है 1 लाख से ऊपर आराम से आपको कमा के देने की पर मंथ. नाउ ड्यूरेशन जो है वो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का है दैट इज 96 आवर्स और प्लस 4 आवर्स आपको डाउट सेशंस के लिए जाएंगे. तो टोटल जो है वो 8 हफ्ते की ये ट्रेनिंग है. दैट इज 2 months ट्रेनिंग यू विल बी गिवन, एंड वी हैव 2 बैचेस.
the weekend batch and the weekday batch. Weekday batches are from Tuesday to Friday. Timings are 6 to 9. And the weekend batches are on Saturday and Sunday. Timings are 10 a.m. to 2 p.m. Now you can either enroll on any of these sessions. These sessions are going to be started according to the timetable shown on their website. You can go to this link, idmpakistan.pk/enroll. You will see both the timetable कि कब sessions start हो रहे हैं, in a weekend के भी और weekday के भी, और आप वहां पे जाके एनरोल भी कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इस लिंक में जाके idmpakistan.pk/enroll. जो भी आपको डेट वहां पे नजर आ रही होगी डिपेंडिंग ऑन द टाइम जब आप ये देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मेक श्योर के आपके पास जो भी स्लॉट आपको नजर आ रहा है अगर फिल नहीं हुआ है ऑलरेडी तो यू साइन अप नाउ, बिकॉज द रीजन इज के क्लास में हमारी कोशिश होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हो. द रीजन इज के जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो वी रिक्वायर मोर टाइम and we cannot actually extend the time, right? We have a small amount of time, that is 96 hours, and for that we enroll only a selected amount of students. Now if you are interested, you can go there, enroll on either weekday or weekend batch, and then we will give you a call. We will actually call you and qualify you if you are a good fit for this program or not. Now you only have to have the degree requirement is, there is actually no degree requirement. You actually have to have a graduate degree at least. Like you either be doing graduate or you are a graduate or you are a BCom, something like this. So you can enroll on that basis. Other than that, you actually have to have small knowledge of computers and internet, so that you can actually, and laptops are compulsory for this training session because this is online training, online digital marketing training, and this is 100% practical training. You will be required a laptop which you will bring. We will not provide you with a laptop, and so if you go on this link and you can enroll on that link. So if you are if you have any questions, regarding this training program, about the structure, about how it will help you or if it will not help you, how you can get started, how this will help your business or your career or about your job, you can just email me at shoaib@idmpakistan.pk, or you can call us at 0333-343-991. 0333-343-991. You can call us and our representative will be happy to help you with any of the questions that you have. आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, हमारी कोशिश होगी कि we will help you with best of our knowledge so that you can make the best decision for your life. So I'm just going to close this session, guys, or I hope you like this video. And if you have again any question, you have this number, you can call on this number, you can email me on this ID, and you will get a prompt response from our team. Make sure you do not delay either contacting us or either enrolling directly, because the seats are again limited and will not like we cannot promise any more seats other than we actually have in our centers. So this is a physical live training in Karachi. You will be given the address of the center, the headquarter जो हमारा है उसका center, जो head office जो है उसका जो location है वो हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन जो हमारी जो ट्रेनिंग सेशन की जो सेंटर्स होंगे वो आपको आपके मैसेज में जैसे आप एनरोल होंगे आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका सेशन होगा, और यू कैन फॉलो दैट अकॉर्डिंगली. सो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन, गाइज. आई होप यू लाइक इट and I'm sure that you guys will be in touch. So thank you very much. Allah Hafiz.